بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون الكتاب وإقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے۔ دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں اور تمام سمندروں کے پانی کو شیائی بنا لیں، انک بنا لیں، اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی توصیف بیان کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، قلم بند کرتے چلے جائیں، ہمارے قلمیں ٹوٹ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، شیائی ختم ہو جائے گی، انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا باقی رہے گی۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ملیامٹ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی موت ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہمیں پہناتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء و رسولوں پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے کائنات کے آخری نبی، خاتم النبین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمتوں مغفرتوں کا نزول ہو جیو تمام صحابہ صحابیات پر، تابعین تبع تابعین پر، ائمہ دین پر، محدثین کرام پر، مفسرین کرام پر، تمام مؤمنین اور مؤمنات پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا اگر کوئی انسان ان 3 باتوں پر عمل کر لیتا ہے، اگر ان 3 باتوں کے ساتھ مجھ سے سودا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کا یہ سودا کرنا، اس کی یہ تجارت کرنا، اس کا یہ بزنس کرنا کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا باتیں اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون الکتاب، بے شک وہ لوگ جو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید سے ان کا تعلق جڑا ہوا رہتا ہے۔ پہلی بات، پہلا عمل اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی کتاب یہ ایسی واحد کتاب ہے جو پورے کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔
पूरी किताबों में सबसे अफजल किताब है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर और किताबें नाजिल की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हजरत ज़ुबूर अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, और सहीफे इब्राहिम व मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए। इन तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अल्लाह ताला ने जो दी है वो कुरान मजीद है। वो क्या है? कुरान मजीद है। अगर आप गौर करें, अभी हमसे चंद दिन पहले रमजान गुजरा तो अल्लाह ताला ने इस किताब को मुबारक महीने के अंदर, बाबरकत महीने के अंदर, मुकद्दस महीने के अंदर, महीनों में सबसे अफजल महीना जो है रमजान का महीना, उस महीने में अल्लाह ताला ने इस किताब को उतारी। अल्लाह ताला ने इस किताब को उतारी, और उतारी तो किसके ऊपर उतारी? अंबियाओं के सरदार, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई। और महीना भी रमजान का महीना, और कौन सी रात? मुबारक रातों के अंदर, ताख रातों के अंदर, शबे कदर के अंदर अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया। यह ऐसी मुकद्दस किताब है। और यह किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत और रुश्द का सामान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस किताब को पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहनुमाई बनाए, हिदायत और रुश्द का रास्ता बनाया अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए। यह ऐसी मुकद्दस किताब है। तो अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लज़ीना यतलूना, बेशक जो लोग मेरी किताब की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ये इनका सौदा करना, अल्लाह से तजारत करना, ये सबसे बेहतरीन तिजारत है। मेरे अजीज साथियों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान, अब जरा गौर करें, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान अब कौन है हमारे नजर में? अब हम कहेंगे हमारे नजर में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास रहने के लिए आलीशान मकान है, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे लिबास और उम्दा लिबास उसके पास है, कीमती लिबास उसके पास है, या फिर उसके पास फिरने के लिए, घूमने के लिए अच्छा सवारियां उसके पास मौजूद है, या फिर उसके पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस उसके पास मौजूद है। ये इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। मेरी और आपके नजर में दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजर में सबसे बेहतरीन इंसान, अगर उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है, अगर उसके पास खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है, 3 वक्त के बजाय 2 वक्त की रोजी रोटी खाता है, खाना खाता है, रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है, फिरने के लिए उसके पास सवारियां नहीं है, पुराने कपड़े पहनता है, पुराना लिबास पहनता है, अगर उसके पास अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात मौजूद है, कुरान का इल्म उसके पास मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अल्लाह अकबर। दुनिया का अमीर आदमी अच्छा नहीं है अगर उसके पास कुरान की तिलावत नहीं है, अगर वो कुरान को नहीं जानता, अगर वो कुरान को नहीं पढ़ता, तो अल्लाह के नजर में अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजर में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। ये पहली तिजारत है, ये पहला सौदा है अल्लाह के साथ कि जो इंसान कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत के अंदर भी नवाजता है। और कुरान की बरकत अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, तो देखिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनना, कुरान को पढ़ने का शौक कितना रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बारे में इस हदीसों के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में 1 मरतबा कुरान को दोहराया करते थे, लेकिन जब आपका इंतकाल होने वाला था, आप दुनिया से रुखसत होने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा कुरान को दोहराया, 2 मरतबा कुरान को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कुरान मजीद से मोहब्बत,
قرآن مجید سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سننے کا جذبہ، شوق بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے، مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، اے اللہ کے نبی ہماری تو خواہش ہوتی ہے، ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ آج میری تمنا ہے کہ میں قرآن کو سنوں، میں قرآن کو سنوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں، جب عذاب کی آیت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کو پڑھنا سننے کا جذبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ تو حال اللہ کے نبی کا تھا، صحابہ کا کیا تھا، صحابہ کا معمول کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہم اپنے ذرا ایمان کا بھی جائزہ لیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہ ہم روزانہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جن کا معمول ایسا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تلاوت کیا کرتے تھے، بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر آہستہ سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر عمر میں نے سنا کہ آپ دونوں رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ابو بکر آپ آہستہ تلاوت کرتے ہیں، اور عمر تم زور سے تلاوت کرتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ اس لیے تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی اور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس لیے زور سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری تلاوت کو سن کر اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ جذبہ صحابہ کے دور میں، تابعی کے دور میں، تابعین کے دور تک، اور بہت سارے متقی اور پرہیزگارین لوگوں کے زندگیوں تک یہ مقرر تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے قرآن کا پڑھنے کا جذبہ، قرآن کے پڑھنے کی خواہش آج ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ کہف تلاوت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد صحابہ کرام فوراً سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے زندگیوں کے اوپر اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے سورۃ کہف کی تلاوت کی، کیا ہم نے قرآن کو اٹھا کر پڑھا؟ قرآن کو اٹھا کر پڑھا؟ افسوس کہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک، اور مزید 3 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، آج اس فضیلت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیے اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہنوں کے اندر اتار لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش بھی کرے گا، اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ قرآن کو جانتا تھا، قرآن کو پڑھنا جانتا تھا، لیکن اس نے میرا حق مارا، اے اللہ اس سے میرا حق دلا دے۔
इससे मेरा हक दिला दे। प्यारे नबी ने फरमाया कि जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान को क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ये तेरा बंदा रात दिन कुरान की तिलावत क्या करता था, अल्लाह तू इसे जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह तू इसे जन्नत में दाखिल कर दे। कुरान तुम्हें जन्नत में दाखिल कराएगा। और जो इंसान कुरान की तिलावत नहीं करता, कुरान को नहीं पढ़ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान कल कयामत के दिन अल्लाह के पास लड़ेगा और कहेगा, अल्लाह इसने मेरा दुनिया के अंदर हक मारा, इसने कुरान की तिलावत नहीं की, ना कुरान को सीखने की कोशिश किया, ना कुरान को पढ़ने की कोशिश किया, अल्लाह ताला उसे तो जहन्नम में डाल दे। अल्लाहु अकबर। जरा मोमिनो, मेरे माँ और बहनों, जरा गौर करें हम अपनी जिंदगी के ऊपर, क्या हम कुरान की तिलावत करते हैं। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जिन पर रश्क किया जा सकता है। वो दो आदमी कौन से हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो आदमी जिनको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया, कुरान की तिलावत करते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ऐसे दो आदमियों पर रश्क किया जा सकता है, हसद किया जा सकता है। हसद का मारा यह नहीं कि उसके लिए जलना, बल्कि लिए अल्लाह से यह दुआ करना कि अल्लाह ये तेरा बंदा जिस तरह कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह मुझे भी कुरान का इल्म अता फरमा ताकि मैं भी ऐसे कुरान की तिलावत करूं। ये तेरा बंदा जो तेरे रास्ते में अपने माल को खर्च करता है, उस दौलतमंद के लिए दुआ करें, अल्लाह तेरा बंदा जब माल को खर्च करता है, अल्लाह ऐसे मुझे भी तेरे रास्ते में मुझे भी माल अता कर दे ताकि मैं तेरे रास्ते में इस माल को खर्च करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान की इतनी बड़ी फजीलत कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया। और कुरान की इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह ताला ने इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें उरूज अता किया, उन्हें जमीन का खलीफा बना दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत के अंदर इज्जत से नवाज दिया जो कुरान की तिलावत करते हैं। और अल्लाह का वादा भी है कि जो कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत से नवाजता है। अल्लाह ताला उसे दुनिया में इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी इज्जत से नवाजेगा। और जो कुरान को छोड़ता है, कुरान को पढ़ना तर्क कर देता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में जलील और रुसवा कर देगा। आज देखिए हमारे मुस्लिम माशरे का क्या हाल है, हमारे मुसलमानों का क्या हाल है। इन हालात को देखकर शायर का मुझे एक शेर याद आता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम जलील व ख़ार हैं तारीक़ कुरान होकर। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत को हमने छोड़ दिया, कुरान से मोहब्बत करना हमने छोड़ दिया। आज दुनिया में मुसलमान जलील व रुसवा हो रहा है। हिंदुस्तान में हो रहा नहीं हो रहा है? अब मध्य प्रदेश के हालात देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात आप देखिए, वहां पर मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है, कितनी तकलीफें दी जा रही हैं। हर स्टेट का आप मुआयना कीजिए, हर जगह मुसलमान तकलीफ में मौजूद हैं। उसका एक सबब यह है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पर गौर फिक्र करना छोड़ दिया, कुरान पर तदब्बुर करना छोड़ दिया, हमने कुरान से मोहब्बत करना छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमें जलील और रुसवा कर दिया। एक साहबी रसूल जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा का इमाम मुकर्रर किया था। कुरान से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, तो आप कुरान से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। साहबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे मस्जिद कुबा का इमाम मुकर्रर किया था। और उस सहाबी का एक दस्तूर था, उस सहाबी का एक अमल यह था कि सहाबी जब भी नमाज पढ़ते, ज़हरी नमाज पढ़ते, तो हर दिन वो सूरह इखलास की तिलावत करते, सूरह इखलास की कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते। बाद सहाबा कराम आकर अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी आपने जिनको हमारा इमाम मुकर्रर किया है, वो इमाम हमेशा नमाज के अंदर सूरह इखलास पढ़ाते रहते, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ाते हैं। जब भी कोई सूरा पढ़ते हैं तो आखिर में सूरह इखलास पढ़ते हैं, इखलास की तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को अपने पास बुलाया और कहा कि बाज लोग आपके बारे में शिकायत करते हैं कि आप हमेशा नमाज में सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे इस सूरह से मोहब्बत है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया है,
اپنے توحید کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص سے محبت گویا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کم سے کم ہم سورہ اخلاص کی تلاوت تو کریں، کم سے کم روزانہ سورہ اخلاص کو تو بار بار پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثلث القرآن، پونا حصہ قرآن پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو پہلا عمل، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور یہ بزنس یا تجارت ایسی ہے کہ انسان کو کبھی اس میں خسارہ، توٹا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی کتاب، یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سودا ایسا سودا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر انسان روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا یا کم سے کم روزانہ قرآن کی 10 آیتیں پڑھے گا، اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ پڑھنا تو زیادہ چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 10 قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی غافلوں میں نہیں بناتا، اور جو آدمی روزانہ 100 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے متقین اور پرہیزگاروں میں بناتا ہے، اور جو روزانہ 500 یا 1000 سے زائد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا، بڑا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اور وہ اجر ہمیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں معلوم ہوگا۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ پہلا عمل کہ ہم اللہ سے قرآن کی تلاوت کر کر تجارت کریں۔ دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں پر قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا، قرآن سے اپنا رشتہ قائم رکھنا، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اب میں اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں وعید کیا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ میں اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ایک آدمی روزانہ گھر کے اندر یا پھر روزانہ 5 وقت پانی نہاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ ویسا ہی انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور نماز کو چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ ایک نماز کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ اب ہماری زندگیوں سے کتنے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری زندگیوں سے کتنے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا، کس چیز کا حساب ہوگا بھائی؟ کس چیز کا حساب ہوگا؟ مال کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا، صدقے کا حساب ہوگا، عمرے کا حساب ہوگا، یا پھر کس چیز کا حساب ہوگا؟ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے عمرہ کتنے کیے، حج کتنے کیے، صدقہ کتنا دیا، زکوٰۃ کتنا دیا، یہ عمل بعد میں حساب لے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا عمل یاد رکھو میرے مومن بھائیوں،
मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के लिए इस हदीस को अपने जहनों में उतार लो, अपने दिमागों में उतार लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले कल कयामत के दिन नमाज का हिसाब होगा। मेरे बंदे 5 नमाजों का हिसाब दे दे, फजर की नमाज का हिसाब दे दे, जोहर की नमाज का हिसाब दे दे, असर की नमाज का हिसाब दे दे, मगरिब की नमाज का हिसाब दे दे, इशा की नमाज का हिसाब दे दे। अल्लाह 5 नमाजों का सवाल, 5 नमाजों का हिसाब लेगा। सबसे पहले आमाल में नमाज का हिसाब होगा। सबसे पहले आमाल में नमाज का हिसाब होगा कि कितनी नमाज अदा की। तो हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब करें, अपने नमाजों का हिसाब व किताब करें कि मैंने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, कितने नमाजें अदा की हैं। अल्लाह के नबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि तुम अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने आमाल का मुहासबा करो। दुनिया में अगर तुमने अपने आमाल का हिसाब किताब कर लिया, आखिरत के दिन तुम्हारे लिए आसानी होगी। आखिरत के दिन तुम्हारे लिए आसानी होगी। अगर तुमने दुनिया के अंदर अपना हिसाब व किताब नहीं किया, अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया, अपने आमाल का मुहासबा नहीं किया, तो कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। तो वहां के हिसाब से अगर बचना है, वहां के हिसाब से अगर छुटकारा पाना है, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब किताब कर ले कि मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितना मैंने नेक अमाल किया है। अगर हम यहां पर हिसाब किताब करेंगे तो कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिसाब किताब भी आसान होगा। ये दूसरा अमल अगर इंसान ये कर ले तो कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह बड़ा फायदेमंद होगा और कभी उसके लिए खसारा और नुकसान नहीं होगा। तीसरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जायदाद से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है कि वो अपने जरूरतों को पूरा करने के बाद भी उनके पास माल बचकर रहता है, अपने रिस्क में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कैसा खर्च करते हैं? सिर्रन व अलानिया, छुपकर भी खर्च करते हैं, लोगों के नजरों से बचकर भी खर्च करते हैं, खुफिया तौर पर भी खर्च करते हैं और ऐलानिया तौर पर भी खर्च करते हैं, लोगों को बताकर भी खर्च करते हैं। ये शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर इन दोनों तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है। दोनों तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में छुपा कर भी दो या फिर लोगों को बताकर भी दो। छुपा कर दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी लोगों के नजरों से बचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, किसी को मालूम हुए बगैर, किसी को बताए बगैर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जो आदमी अपने सीधे हाथ से देता है तो बाया हाथ से पता नहीं चलता, बाया हाथ से देता है तो सीधे हाथ को पता नहीं चलता, ऐसे खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में अपने माल को, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। दुनिया में हमें बहुत सारे दरख्त का साया मिल जाएगा, घर का साया मिल जाएगा, फला जगह जाएंगे तो वहां साया मिल जाएगा, लेकिन कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, जब ये दुनिया, ये जमीन चटेल मैदान की जाएगी, उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। ऐसे साये में अल्लाह ताला ऐसे सदका करने वाले को अपने अर्श का साया अता करेगा और जो लोगों को बताकर देता है ताकि लोग उसके सदके को देकर वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल अल्लाह ताला उसे उसके सदके का साया अता करेगा। जो हम सदका करते हैं, जो खैरात करते हैं, जो माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं, कल यही माल हमारे लिए अबर बनकर आएगा, साया बनकर आएगा। और कल कयामत के दिन आज का जो ये सूरज है जो खरबों मील दूर है, कल कयामत के दिन हमारे सर पे सवा नेज़े के बराबर होगा। आज अप्रैल मई की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अप्रैल मई की धूप को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद कीजिए, उस आलम को याद कीजिए जब कयामत के दिन ये सूरज हमारे सवा नेज़े के बराबर होगा। अगर हमने दुनिया में सदका व खैरात किया,
हमने दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च किया तो कल क़यामत के दिन यही माल हमारे लिए साया बनकर आएगा, साया बनकर आएगा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे एक सवाल है, क्या आप लोग चाहते हैं फरिश्ते हमारे हक में दुआ करें? अब हर एकला कहेगा कि हाँ फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरे लिए फरिश्ते ना दुआ करें? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। हर एक बंदा कहेगा कि फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके हक में दुआ करें तो अल्लाह के नबी की हदीस याद कर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने ज़हनों में उतार लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना सुबह को 2 फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, जमीन पर उतरते हैं और 2 लोगों के लिए दुआ करते हैं, 2 लोगों के लिए दुआ करते हैं। एक वो आदमी जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ये तेरा बंदा तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह तो उसके माल में और बरकत अता फरमा, उसके माल में और बरकत अता फरमा। अब जब फरिश्ते दुआ करें, बरगज़ीदा फरिश्ते, अल्लाह के इताअत और फरमा बरदारी करने वाले फरिश्ते, कभी अल्लाह के नाफरमानी नहीं करते, ऐसे फरिश्ते जब अल्लाह से दुआ करें तो क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द करेगा? क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द करेगा? नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें तो हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तो अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तो इसके माल में और बरकत अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, जो बंदा अपने माल को रोके रहता है, माल में बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह इसके माल को हिला कर दे, अल्लाह इसके माल में कमी कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में ये इतनी बेहतरीन तिजारत है। अल्लाह ने फरमाया लन तबूर, कभी नुकसान खसारा उठाने वाले ये लोग नहीं होंगे। मेरे भाई और अजीज दोस्तों, बहुत सारे फजीलतें कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलते हैं कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे दुगना अता करता है। यकीन ईमान हमारा होना चाहिए, अगर मैं 1 रुपया दूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कहीं से और मेरे रोजे के अंदर बरकत अता करेगा। ये ईमान और यकीन हमारा होना चाहिए, जैसा कि सहाबा कराम का था। सहाबा कराम का ईमान और यकीन था कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह हमें और अता करेगा, अल्लाह हमें और देगा। उनका यकीन और कामिल यकीन था, अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा। मेरे भाई और अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की 2-3 मिसालें देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जब मेरे कानों से ये आयत टकराई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बगीचा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं, अल्लाह के लिए मैं वक्फ कर देता हूं, अल्लाह के लिए मैं वक्फ कर देता हूं। और वो बगीचा कोई मामूली बगीचा नहीं था, मामूली बगीचा नहीं था, ये वो बगीचा था जिसमें प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वहां के खजूरें खाया करते थे और वहां का शीरी पानी, मीठा पानी अल्लाह के नबी नोश किया करते थे और अल्लाह के नबी उस बगीचे में जाकर आराम किया करते थे। ये वो बगीचा था जो अल्लाह के नबी को भी पसंद था और हज़रत तलहा को भी पसंद था। तो कहते हैं अल्लाह के नबी, ये सबसे महबूब मेरा माल है, महबूब मेरा बगीचा है, अल्लाह के नबी मैं इसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता हूं। और अल्लाह के नबी कहा, अबू तलहा तुम इसे वक्फ करो और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में इसे वक्फ करो ताकि तुम्हें दुगना अजर मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी को मदद करने का सवाब मिलेगा और तुम्हारा वक्फ किया हुआ माल उसका सवाब मिलेगा। तो महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और उसके बाद खर्च करने का जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए कि मैं एक दूसरे से आगे बढ़ूं,
अल्लाह के रास्ते में एक दूसरे से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर कर मैं उससे नेकियों में आगे बढ़ूं, ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, जैसे हमारे सहाबा के अंदर था, हमारे असलाफ के अंदर था। हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों जिनके लिए निकलना है, माल की जरूरत है, अपने पास जो जो भी माल है वो लेकर आइए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी दिल के अंदर एक तमन्ना आई कि आज अबू बकर से आगे बढ़ने का मौका है, अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ने का मौका है, आज मैं सबसे ज्यादा माल लेकर आऊंगा। हजरत अबू बकर और उमर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से माल लेकर आते हैं, अबू बकर भी अपने घर से माल लेकर आते हैं, दूसरे सहाबा भी अपना माल लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के नबी हर एक से पूछते हैं कि आप क्या लेकर आए, आप क्या लेकर आए, आप क्या लेकर आए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी आती है तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछते हैं, क्या उमर आप क्या लेकर आए? तो उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना माल था उसका आधा आधा माल मैं लेकर आया, जितना माल था उसका आधा माल मैं लेकर आया हूं, आधा माल मैं घर छोड़कर आया हूं। जब अबू बकर से पूछते हैं, अरे अबू बकर आप क्या लेकर आए? तो अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास घर में जितना माल था मैं पूरा समेट लेकर आ गया, पूरा समेट लेकर आ गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, घर वालों के लिए घर में कुछ नहीं छोड़ा? तो कहा, अल्लाह और उसके रसूल का नाम मैं छोड़कर आया, मुझे अल्लाह के ज़ात से यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे और अता करेगा, अल्लाह ताला मुझे और अता करेगा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। ये जज्बा हमारे मुसलमानों के अंदर, हमारे ईमान वाले भाइयों के अंदर, हम ईमान वालों के अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि हम भी एक दूसरे से आगे बढ़े, नेकी के अंदर, नेक अमाल के अंदर, कि मेरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे इसका दुगना अजर अल्लाह ताला अता करे। और एक साहबी रसूल, अब आज लोग बहाना लगाते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, अल्लाह ताला उन्हें दिया है, वो खर्च करते हैं, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं? सलमान, हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी जंग का वाक़या है ये भी। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं, मैं गरीब आदमी था, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक जज्बा था, मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश था कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करूं, अल्लाह के रास्ते में मैं भी कुछ ला कर दूं। तो जाते हैं एक यहूदी के बगीचे में, रात भर मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं? वो डोल से पानी निकालकर बगीचे को सैराब करते हैं, खजूर के दरख्तों को पानी से सैराब करते हैं, और रात भर मेहनत करने के बाद उन्हें मजदूरी मिलती है। क्या मजदूरी मिलती है? एक मुट्ठी भर खजूर उन्हें मिलते हैं, एक मुट्ठी भर खजूर उन्हें मिलते हैं, और वही खजूर लेकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो देने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये खजूर हैं जो मैंने रात भर मेहनत कर कर ये खजूर मजदूरी तौर पर लेकर आया हूं। अल्लाह के नबी आप इसे कबूल कर लीजिए, आप इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने का जज्बा कैसा होता है? अगर आपके पास नहीं है, आप नियत कर लीजिए, आप नियत कर लीजिए और रास्ता तलाश कीजिए, अल्लाह आपको रास्ता अता करेगा, अल्लाह आपको रास्ता दिखाएगा। हजरत सलमान वो खजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देते हैं, जब आप हाथ में लेते हैं तो क्या देखते हैं? डोल खींचने की वजह से, रस्सी से पानी निकालने की वजह से उनके हाथों पर छल्ले पड़े हुए, उनके हाथ छिले हुए हैं, उनके हाथ जख्मी हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को लेकर सहाबा किराम में ऐलान करते हैं कि आज इस माल के अंदर सबसे बेहतरीन माल अगर कोई है तो हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल है, जो रात भर मेहनत करके अल्लाह के रास्ते में लेकर आए। ये जज्बा, ये शौक हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। और मेरे भाई और दोस्तों, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। इसके ताल्लुक से अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और खर्च करें तो किन चीजों के अंदर खर्च करें? एक तो यतीम और मिस्किन और गरीबों और बेवाओं पर तो हमारा खर्च होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अल्लाह ताला के दीन पर खर्च करने की कोशिश करें, इल्म के नशर व इशाअत पर खर्च करें, और अल्लाह की मस्जिदों को बनाने में,
अल्लाह के मस्जिदों को बनाने में अपना माल खर्च करें, इसलिए कि जो लोग अल्लाह के मस्जिदों में माल खर्च करते हैं, ये माल ता कयामत तक आपको अजर और सवाब दिलाएगा। और इतना नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मसाजिदन लिल्लाह, जो लोग अल्लाह के लिए मस्जिदें बनाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के अंदर घर बनाता है, उनके लिए जन्नत के अंदर महल अल्लाह ताला उन्हें बनाता है। अगर कोई इंसान एक ईंट देता है, एक पत्थर देता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर घर अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कई सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे परेशानी और मुसीबतों को दूर फरमाए। आलमीन या जो कर्जदार है, अल्लाह उनके कर्ज को दूर फरमा, कर्ज का रास्ता आसान फरमा। या आलमीन जो बीमार है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफा कामिला आजिला अता फरमा। या आलमीन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को जन्नत का बगीचा बना। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सूबे कर्नाटक शहर अरसीकेरा जो हासन डिस्ट्रिक्ट का एक ताल्लुका है, वहाँ से आया हूँ। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मस्जिद भी मौजूद है। अब मस्जिद के करीब में ख़वातीन के लिए मस्जिद बनाई जा रही है ताकि उनके लिए भी नमाज पढ़ना आसान हो जाए। एक छोटा सा हाल है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह औरतें आकर नमाज पढ़ रही हैं, ख़वातीन आकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जगह तंग रहने की वजह से अब उसे बड़ा करने के लिए अहबाब जमात ने इरादा किया है और उस हाल को बनाने के लिए और इमाम साहब को रहने के लिए घर भी बनाया जा रहा है। तकरीबन 20 से 25 लाख का खर्चा है। तो आप अहबाब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, दिल की गहराई से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस छोटी सी मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इंशाअल्लाह ये माल आपके लिए सदक़े जारिया में बनेगा और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आपको ये माल अल्लाह के पास जन्नत में घर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदल व इहसान व ईता'i ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व अस्तग़फिरुल्लाह तआला जतुम व अहम व अकबर।